बिजनेसमैन को आप कितना भी इन्वेस्ट करने को बोलो, वो हमेशा इस चीज को देखता है कि इस इन्वेस्टमेंट से मेरा फायदा क्या होगा, ठीक है। बट अगर प्रोडक्ट 50 रुपए का है तो फाउंडर पैकेजिंग में ही 10 रुपए नहीं खर्च कर सकता है, उसकी लिमिटेशन। फाउंडर्स होते हैं, यू विल सी कि वो प्रोडक्ट बनाने से पहले कंज्यूमर्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सिर्फ पैकेजिंग पे ना फोकस करके पहले समझना चाहिए कि वो पैकेजिंग किनके लिए है और कहाँ पे जाने है। Everyone, welcome to the first episode of The Virus Show, a designer podcast about raw discussion on design. So, here today we have Tushar as our first guest, and we will be talking about the importance of packaging design in the industry and how we as a designer are important in that, and how packaging design influence the consumers. So, before we start, for those who don't know about Tushar, Tushar, would you like to introduce yourself and tell about your career and how you landed up in design and specifically in packaging design? For sure, Raghu. First of all, thank you for inviting me to the first My honor. podcast. And I have been in the industry for the past 6 years. I've been working with a lot of brands, and currently I'm focusing on consumer brands. So, कोई बात चलेगा होता है रिपीट okay. Hi, Raghu. So, thank you for inviting me to your first podcast. And I'll give a little intro about myself. That I'm a brand designer and I have been working with a lot of brands in the past 6 years. And currently, I'm focusing on building consumer brands primarily in FMCG space. So that is what I do. Okay, interesting. That is really interesting. So, the niche of your design skill, like for those who don't know, there was a time when I was as an intern under Tushar at a design agency based in Delhi, and from there I got to know about Tushar. So it was a really fascinating experience working under him. Sorry. And talking about the packaging, why did you choose packaging design specifically over all other things in the design discipline? Okay. So although packaging is the end product of a consumer brands, but I'm into building a consumer brand. Like, it is very fascinating because you get to see it and you get to see a lot of people interacting with this product. Right? It is usually in mass scale and people around you use these products on a day-to-day basis. And I feel packaging is one of the most strategic design space among all, because it can influence someone within seconds to make their decision either to buy a product or not. For me, it is very fascinating, and it also challenges you to come up with something new and come up with something that will work in the market, not just on the screens, on your laptop screens. So that is why I went ahead with consumer brands, and I feel this is something very interesting. I would like to explore. Okay, interesting. So what you're trying to say is that packaging is the what you can say direct experience between a brand and a consumer. So that is the most crucial part and the most important thing for a particular brand, be it FMCG or be it any other product based company. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो ताकि लोगों को ईजी रहे बात करना और समझना. एंड एज यू नो, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि दिस इज अ मोर ऑफ अ रॉ डिस्कशन अबाउट डिज़ाइन, अबाउट द टॉपिक्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉक्ड इन द इंडस्ट्री. तो आगे बढ़ते हैं. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्यूरियोसिटी है मेरी कि आर द फाउंडर्स ऑफ FMCG ब्रांड्स अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? Okay. So they are aware, but usually challenge क्या होता है कि that we as designers usually perceive design as something, as what new we can do, what different can we do, what kind of design can we come up with. Similarly, a lot of time founders also biased with a lot of designs that are available on the internet, or a different brand is doing something a certain way. And what they miss here is that instead of focusing on what kind of design they can provide on their package,
It is more about what information is relevant to their consumer and how you can communicate it to them in a very appealing manner, right? The information has to be interesting. It has to create a perception of the product, and for that, whatever is required, obviously it is conveyed through design only, but there are a lot of things that comes before design, and I believe a lot of founders who are occupied with doing multiple things might not be able to focus on what goes before creating the final design. So it's like अभी उनको idea तो है, but there's layers, a lot of layers that they need to learn more about. That is why we designers are the ideal people to help them with how they can create a perception about their product, and it will be appealing and relevant to the consumers. Understood. ठीक है, that was really interesting insight और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज पर्सनली एज अ कंज्यूमर व्हेनेवर आई गो किसी भी मॉल में किसी भी स्टोर पे हम देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है और कुछ प्रोडक्ट उन्हीं के बगल में रखे हैं जिनकी पैकेजिंग डिज़ाइंस काफ़ी पुरानी है और किसी काम की नहीं है, बट स्टिल वो बिक रहे हैं, वो अच्छी डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं और वो भी बिक रहे हैं. सो दैट वाज द माय क्वेश्चन कि उनके फाउंडर्स और उनके फाउंडर्स में ऐसा क्या डिफरेंस है और ऐसा क्या कमी रह गई है जो वो लोग अभी चेंज नहीं कर रहे हैं उसको. ठीक है, सो आई आल्सो बिलीव कि अगर किसी फाउंडर के बिजनेस में कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे, इट इज रनिंग स्मूथली, मे बी चेंजिंग द डिजाइन कैन आल्सो कम एज रिस्क. तो काफी बार क्या होता है, जिनका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है, दे हैव अ सर्टेन रेवेन्यू, उनका कैश बन रहा है, दे डोंट वांट टू एक्सपेंड इट और उनको ज्यादा ग्रो नहीं करना है. इन दैट सिनेरियो दे टेंड टू अवॉइड द रिस्क by changing the design. Basically, design is the identity of a product, right? And since they don't want to expand, वो identity वो lose नहीं करना चाहते. इसका एक बहुत classic example है MDH का logo, right? Although they are growing rapidly, but they don't want to take the risk, right? If it will not help them gain more business, then a redesign is as useful as not doing it. You can simply avoid it. So that is why बहुत सारे founders से businessmen अपने designs को नहीं change करते हैं, and I feel it is okay. But if you are facing some sort of problems, right? If it is more about how people perceive your product या positioning change करने का time आ चुका है, तो उस केस में redesign is required, and then you have to do proper study कि क्या aspects हैं और बाकी के players मार्केट में वो किन चीजों पे लेवरेज कर पा रहे हैं और उनको इनकॉर्पोरेट करके अपने डिजाइन मार्केट में ला सकते हैं. इट विल हेल्प यू बूस्ट अप योर रेवेन्यू एंड सेल्स. ठीक है, अंडरस्टूड. काफी इंटरेस्टिंग था ये चीज के बारे में. इवन आई नेवर थॉट अबाउट दिस. सो या ठीक है. मूविंग अहेड, आर द फाउंडर्स ऑफ द एफएमसीजी ब्रांड्स, और इफ वी टेक इन जनरल नॉन एफएमसीजी ब्रांड्स भी, आर दे रेडी टू इन्वेस्ट मनी इन देयर पैकेजिंग, लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी? ओके, ठीक है. जब भी आप किसी से बोलते हो ना इन्वेस्ट करने के लिए, एक बिजनेसमैन को आप कितना भी इन्वेस्ट करने को बोलो, वो हमेशा इस चीज को देखता है कि इस इन्वेस्टमेंट से मेरा फायदा क्या होगा, राइट? अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा कोई ब्रांड है, ठीक है, चिप्स का ब्रांड है, तुमने उस पे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग सेट करी, ब्रांड बनाया, एंड इट इज नॉट रनिंग, ठीक है. मैं बोलूं कि मैं 10 लाख रुपए में आपकी ऐसी मार्केटिंग करूंगा कि आपका बिजनेस अप टू 10x ग्रो कर जाएगा. विल यू आस्क मी कि मार्केटिंग का पैसा कितना लगता है या मार्केटिंग में कितना चार्ज होता है, और रेदर यू वुड से कि ठीक है पैसे लो और मेरा बिजनेस बढ़ा दो, राइट? तो ये हो गया बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट. अब इसमें क्या होता है, लेयर्स आ जाती हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके बिजनेस या प्रोडक्ट की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, राइट? It is marketing, it is your distribution, it is availability of the product and the product itself, and competition क्या है. उन सब के बाद one of the aspect is design, right? अगर किसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में 5 फैक्टर लगते हैं, तो डिजाइन इज वन ऑफ दोस 5 फैक्टर्स. इट इज नॉट द ओनली फैक्टर. तो हमें देखना होता है कि हमारा जो भी डिजाइन है या ब्रांड के लिए डिजाइन कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है.
and if you are solving a big problem, then you can charge a big amount, right? And they will be happy to pay you. But अगर उनका business ही monthly business उनका 1 लाख रुपए का, and if you ask them कि हमें 10,000 या 25,000 रुपए डिजाइन के दे दो, then obviously उनके लिए loss making design होगा, right? So it has to be more about कि इस investment से business में कितना फायदा होगा, and जिस business को उससे फायदा होगा, they will be able to pay you. That is why brands like Haldiram's and Bikaji, they pay up to 5 lakh rupees for the packaging, right? And you cannot say कि why are they paying this much amount? It is not for the design, but it is more about कि उनका risk कम होगा, business की बढ़ने के chances ज़्यादा होंगे, and they are happy to pay. It is just like a chunk for them. So that has to be considered whenever you approach a client. Yeah, that really answers the question and even explained a bit more about the thing कि केवल डिजाइन और केवल पैकेजिंग से ब्रांड का ग्रोथ नहीं हो सकता. There are multiple factors affecting that. Yeah, ठीक है. Moving ahead, there are multiple design disciplines. एग्जाम्पल की ग्राफिक डिज़ाइन को ही अगर आप ले लें तो उसमें बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आदमी डिज़ाइन करते हैं और लोग करते हैं डिज़ाइन, एंड दे आर गुड. जैसे एग्जाम्पल के लिए पोस्टर डिज़ाइन हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन हो गया, लोगो डिज़ाइन हो गया, and even there are motion graphics and all other things. So if we talk about packaging design, specifically packaging design, क्या मेजर डिफरेंस है पैकेजिंग डिजाइन का बाकी सबके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, और क्या कॉमन चीजें हैं? व्हाट डू यू थिंक? ठीक, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे आ जाता है कि बिजनेस का स्टेक किस पे ज्यादा है. कंज्यूमर ब्रांड्स में मोस्टली आप प्रोडक्ट से ही इंगेज होते हो, राइट? एंड पैकेजिंग इज द ओनली टच पॉइंट जहां पे आपके 100% कंज्यूमर इंगेज होते हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी बिग, राइट? कि अगर आपका कोई कस्टमर है, they must have bought your product, otherwise they are not your customers. So they have saw your packaging first, or the 100% of the consumer have seen your packaging, then they have bought it. आपकी वेबसाइट स्किप कर सकते हैं, आपका सोशल मीडिया स्किप कर सकते हैं, आपका एड स्किप कर सकते हैं, राइट? सो द स्टेट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द डिजाइन इटसेल्फ. तो वहां पे ये काफी अलग हो जाता है किसी पोस्टर, बैनर या फिर मैं बोलूंगा किसी सोशल मीडिया पोस्ट से या किसी कैंपेन से, राइट? उनकी जो लाइफ होती है वो काफी कम होती है कंपेयर टू पैकेजिंग. देयर आर कैंपेन्स जो कि सालों साल चलते हैं, बट देयर आर पैकेजिंग दैट लास्ट फॉरएवर. एग्जांपल ले लेते हैं पार्ले जी बिस्किट का, राइट? सो देयर पैकेजिंग हैज बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टाइम. वो जब मैं छोटा बच्चा था 2 रुपए का पैकेट लेता था, 8 बिस्किट निकलते, तब भी वैसा ही था. आज भी उसी में एडवर्टाइजमेंट चेंज हो सकता है, ब्रांडिंग चेंज हो सकती है, मार्केटिंग के तरीके चेंज हो सकते हैं, बट इफ पैकेजिंग टर्न्स आउट टू बी गुड, इट डजंट हैव टू चेंज एट ऑल. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइन कंपेयर टू पैकेजिंग. ओके, इंटरेस्टिंग. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि पैकेजिंग डिजाइन में केवल लेबल डिज़ाइन इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट का पूरा शेप और साइज इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम लोगों के पास लिबर्टी हो तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, और इस इन केस इन इंडिया फाउंडर्स एज ए डिज़ाइनर्स हमको लिबर्टी देते हैं कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस? ओके, अंडरस्टूड. यूजुअली क्या होता है, फाउंडर्स के लिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाना इज प्रायोरिटी. ठीक है. तो इनिशियली अगर लेबर सिर्फ रिक्वायर्ड है टू क्रिएट दैट परसेप्शन, दे माइट गो ओनली विद द लो लेबर, राइट? बॉक्स का अलग कॉस्ट आ जाएगा 4-5 रुपए का. बट इन केस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो जरूरी है एंड वो अपने एंड से वो चीज इंक्लूड नहीं करते हैं, उसलिए यू कैन सजेस्ट एंड ब्रिंग आउट टू द लाइट कि हमें बॉक्स के साथ लाना चाहिए. यूजुअली दे अंडरस्टैंड एंड दे आल्सो एक्सेप्ट योर सजेशंस, because they are also trying their best to build a brand, and if your suggestions can help in that, it is even a good thing for them. But हमें ये देखना होगा कि उनकी spending capacity कितनी है. काफी बार हमें लगता है कि ये डिजाइन जो हमने बनाया है, इसका बॉक्स अगर हम मैट यूज कर लें या हाई कार्डबोर्ड यूज कर लें,
ठीक है, बट अगर प्रोडक्ट 50 रुपए का है तो फाउंडर पैकेजिंग में ही 10 रुपए नहीं खर्च कर सकता है, उसकी लिमिटेशन है। तो वी हैव टू सी अगेन कि प्रोडक्ट के पोजीशनिंग में या परसेप्शन में या सेल्स में उस चीज से कितना बेनिफिट होगा, उसके बेसिस पे वी कैन ऑलवेज सजेस्ट एंड कम अप विद मोर सॉल्यूशंस, बिकॉज़ दैट इज आवर जॉब, नॉट ओनली what we can do, what we can not do. So in my case, I always discuss it with the vendor as well, and I create prototypes of packaging myself. कि अगर इसका बॉक्स बना रहे हैं, can be like this, or we can change something, या फिर we can discuss with the vendor as well, कि मटेरियल कौन सा यूज करना है, और अगर हमारी डिलीवरी में 10 दिन लगते हैं उस केस में क्या वो मटेरियल यूजफुल है या नहीं है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, एंड anyone who wants to be in the packaging design space, they have to learn about printing, material, and average cost of creating a box or label. वो जितनी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी उतने ही अच्छे तरीके से हम फाउंडर्स को हेल्प कर सकते हैं to build a product and packaging. And better the packaging, better the experience, better the chances of repeat customers are. काफी बार क्या होता है कि जैसे तुमने कोई प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल तुमने रिसेंटली कौन सा प्रोडक्ट बाई किया जो तुम्हें अच्छा लगा? ये बाइक ले लीजिए रेजर का, या फिर एफएमसीजी में, एफएमसीजी में कि नॉन एफएमसीजी, लॉजिटेक का माउस, दिस माउस, ठीक है, गॉट इट। तो जैसे जो भी माउस आया होगा, ठीक है, उसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होगा उसकी वजह से भी तुम्हारे दिमाग में ब्रांड का परसेप्शन क्रिएट होगा, राइट? अगर हम एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वी एक्सपेक्ट टॉप नॉच क्वालिटी इन देयर डिजाइन, नॉट ओनली द गैजेट्स बट जो भी उनका पार्सल है या उसमें जो भी आइटम्स रखे हुए हैं, इवन अ स्मॉल कार, राइट? वी एक्सपेक्ट देम कि उनके सारे प्रोडक्ट टॉप नॉच हों। सिमिलरली अब हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल माउस लिया, उसका बॉक्स कैसा है, सिर्फ माउस अच्छा होने से तुम सारे ब्रांड से अगली बार ना खरीदो, बट उन्होंने कुछ जिस तरीके कार्डबोर्ड यूज किया, मटेरियल यूज किया, माउस निकालते वक्त कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सपीरियंस वाज आल्सो गुड, यू लाइक इट, राइट? एंड गोल है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बट ये जो पैकेजिंग के टच पॉइंट्स होते हैं दे कंट्रीब्यूट अ लॉट। तो उस केस में जितना अच्छा हम प्रोडक्ट पैकेजिंग बना सकते हैं विद लिमिटेड कॉस्ट, इट इज गुड फॉर द ब्रांड। अच्छा ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज हम बताइए। हां शेयर, गो अहेड, क्या बता रहे थे आप? यू गो अहेड। अरे मेरा काफी डिफरेंट है थोड़ा सा, आप कंप्लीट कर लो। हाँ अच्छा ओके, तो बेसिकली वही होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, पैकेज भी अच्छा है, देन इट इज विन-विन सिचुएशन, ठीक है, इट इज अ गुड ब्रांड। प्रोडक्ट अच्छा है एंड पैकेज इज वेरी पुअर, उस केस में वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोडक्ट नॉट द ब्रांड, तो वो फर्क आ जाता है। समझ, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि जैसे अभी आपने एप्पल का नाम लिया, सो टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे बात किया जाए तो मेरे पास एप्पल का एक आईपैड है और एक एप्पल पेंसिल है, बट उनकी पैकेजिंग मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने अभी तक उसे रखा हुआ है और 1 साल से ऊपर हो चुका है दोनों को खरीदे। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसी पैकेजिंग डिज़ाइन का क्या लगता है, मतलब व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस एंड हाउ गुड आर दिस पैकेजिंग डिज़ाइन कि लोग इसको रखना चाहते हैं? ऐसा क्या रीज़न है इनकी पैकेजिंग में, और ऐसा चीज़ हम लोग क्यों नहीं बना पाते, मोस्टली इन जनरली क्यों नहीं बना पाते? ठीक है, तो हर ब्रांड ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी का प्रोडक्ट 1 लाख से ऊपर का नहीं। ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट। अगर लेकिन आपका 50,000 का भी प्रोडक्ट है, क्या आप ऐसी पैकेजिंग बना सकते हो? यस, एंड ब्रांड्स लाइक OnePlus, इफ यू सी, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। OnePlus हो गया या कोई भी ऐसा फ्लैगशिप प्रोडक्ट आप बाय करते हो किसी भी ब्रांड का, एनी एंड्रॉइड ब्रांड, तो उसमें यूजुअली जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होता है। नाउ कमिंग की इन ब्रांड्स की पैकेजिंग, नॉट जस्ट एप्पल, इन ब्रांड्स की पैकेजिंग जो होती है वो क्यों अच्छी होती है? इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पैकेजिंग ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट या कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूजुअली वो कंटेन करता है प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जांपल आप अपना शैम्पू लो, शैम्पू का कॉस्ट ही आपका 150 रुपए होता है, राइट? प्राइस पॉइंट इज समथिंग कि ये ब्रांड्स उस चीज को उतना ज्यादा प्रिसाइजली प्राप्त नहीं कर सकते।
मास मैन्युफैक्चरिंग होती है हम्म, और प्रोडक्ट में पैकेजिंग की कॉस्ट भी हाई होती है. बट वन थिंग यू विल सी कि कंज्यूमर ब्रांड्स में सेफ ऑफ पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेड एंड शोल्डर के शैम्पू का बॉटल काफी डिफरेंट है और अगर ट्रेसमे का एक शैम्पू लोगे उसका भी काफी डिफरेंट होगा बॉटल. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाह रहा है. वहीं पे अगर हम एप्पल या गैजेट्स की बात करें तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हाउ swiftly can you take out your phone and use it, and maybe even if you want to throw it, it won't matter. But consumer brands में आप पैकेजिंग को थ्रू तभी करते हैं जब आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाए. उसकी जो लाइफ है और जो उसका पर्पस है, it is limited and it is short. तो इस वजह से ब्रांड्स उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं. अगर हम चाहे तो कुरकुरे का भी पैकेजिंग एप्पल के जितना अच्छा बना सकते हैं, but then it will not make sense, right? It is not friendly, it is not financially clever. So that is इंटरेस्टिंग इनसाइट. हाँ, तो अच्छा एक चीज़ इंटरेस्टिंग था मेरे दिमाग में कि पैकेजिंग डिज़ाइन की जो इंडस्ट्री चल रही है इसमें कुछ मेजर चैलेंजेस होंगे. आपको क्या फेस करना पड़ता है इन जनरली कि डे टू डे लाइफ में पैकेजिंग एज अ पैकेजिंग डिज़ाइनर स्पेसिफिकली कौन से मेजर चैलेंजेस हैं फ्रॉम क्लाइंट साइड ले लीजिए, फिर वेंडर से ले लीजिए, या फिर इवन अगर आपको क्लाइंट को कुछ चीज़ समझानी पड़ रही है उस चीज़ को लेके कुछ मेजर चैलेंजेस आपको क्या लगता है, एक्सपीरियंस क्या किया है? ठीक है. One of the major challenge with founders, I will start with founders first. ठीक है. That they usually tend to put a lot of USPs or information about the product on the front, right? कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से काफी अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट में 4 अच्छी चीजें हैं, क्यों ना सबको फ्रंट में रखें, राइट? एंड इट इज नॉट ऑलवेज आइडियल. ठीक है. अब अगर हम बात करें बुलटूथ जैसे ब्रांड्स की, वो सारी चीजें फ्रंट पे लिखते हैं बिकॉज़ देयर कंज्यूमर लाइक इट एंड इट इज अप्रोचेबल फॉर देम, राइट? बट इट हैज टू बी वेरी मच डिसाइडेड एंड स्ट्रेटेजाइज कि हमारा एंड प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, किनके लिए है और वो किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं या उनके लिए क्या इंफॉर्मेशन यूजफुल है. वो चीजें हमें सेग्रीगेट करनी होती है तीन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में. दैट इज फर्स्ट अबाउट द ब्रांड, सेकंड अबाउट द प्रोडक्ट, थर्ड अबाउट व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, की फीचर्स जो भी होंगे आपके प्रोडक्ट. तो यूजुअली ये एक चैलेंज होता है दैट पुटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. इट्स मोर लाइक कि अगर कोई अपना न्यूज़पेपर में ऐड निकालता है तो वो अपना एड्रेस, नंबर, वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दे देता है. बट देन फोकस इज लॉस्ट. सेकंड थिंग यूजुअली कम्स अराउंड द प्रिंटिंग मटेरियल, क्योंकि आप जैसे देखोगे कि देयर आर ग्लोबल ट्रेंड्स अराउंड प्लास्टिक एंड द यूज ऑफ मटेरियल इन द पैकेजिंग. इट हैज टू बी इको फ्रेंडली. तो अभी काफी सारे इको फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. अच्छा. जो कि ब्रांड्स के लिए काफी बड़ा चैलेंज है कि दे वांट टू गो अहेड विद सस्टेनेबल पैकेजिंग, बट वो सॉल्यूशन उतना ड्यूरेबल नहीं है या फिर जो उसका कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई. सो देयर इज अ बिग स्कोप अगर आप सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल को सस्ते में ला सकते, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंडस्ट्री इन फ्यूचर. Other than that, the challenges are very familiar, and it is usually solved by first understanding the market. Market में बाकी brands क्या कर रहे हैं, gap कहाँ पे है, और हम अपने product को कैसे position कर सकते हैं. जिससे मेरे को लगता है most of the challenges जो भी founders के होते हैं या फिर marketing team के होते हैं या फिर product distribution के होते हैं, वो resolve हो जाते हैं. There are no other major challenges as per my understanding. इंटरेस्टिंग. आखिरी मतलब अभी किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाए तो आपको आपने रिसेंटली कौन सा चैलेंज फेस किया था? ठीक है. तो रिसेंटली एक ब्रांड हमारा डिस्कशन में था. इट वाज अ शार्क टैंक फीचर्ड ब्रांड बट दे गॉट द पिच. तो उनके केस में द फाउंडर वाज नॉट वेरी श्योर कि उन्हें किस तरीके का मटेरियल यूज करना है अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग. ठीक है. एंड we were happy to collaborate with the packaging manufacturer and create a packaging that will go with their product.
बट उनके प्रोडक्ट के लिए क्या सूटेबल पैकेजिंग होगा और उसका कॉस्ट क्या होगा, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि एक सस्टेनेबल पैकेजिंग, बिकॉज इट वाज इको फ्रेंडली फोकस्ड ब्रांड, तो वहाँ पे प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करना was not possible, otherwise वो ब्रांड के कम्युनिकेशन और विजन के साथ अलाइन नहीं करता, और फाउंडर के लिए सस्टेनेबल पैकेजिंग को आउटसोर्स करना फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई was not really feasible. So that is why that was one of the major challenges. There were a lot of few more challenges, but this was the major challenge, and eventually we didn't reach a conclusion कि क्या करना है क्या नहीं करना, and that brand didn't turn out to be executed by us. It is, I think they are still figuring out उसको कैसे करना है, and that was the major challenge that I recently faced. समझ गए, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था इनसाइट, और ये हमें लगता है कि और डिज़ाइनर्स भी फेस किए होंगे कि एक ना एक टाइम, इवन आई हैव फेस दिस, कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये नहीं ए नहीं बी चाहिए क्योंकि आपके ब्रांड के लिए बेटर है, बट दे आर लाइक कंफ्यूज एंड दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी, सो ये होता है, ठीक है. मूविंग अहेड, क्योंकि it is a business. At the end, it is a business. They have to see about profits and margins and cost of the product. So that is, I think, is the priority for any businessman or woman. So I feel it is totally. Yeah, in the end, सबको return on investment ज़्यादा चाहिए, और they have to be pretty sure before investing. So that's why. Yes. So moving ahead, there is one interesting thing that I feel कि साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है पैकेजिंग डिज़ाइन पे, एज अ कंज्यूमर और एज अ डिज़ाइनर, हम किस एक्सटेंट तक इस चीज़ के बारे में सोचते हैं या यूज़ कर इम्प्लीमेंट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दिस? I think this is one of the most interesting question, and it is all about the behavior of consumer. For example, when we see an ad on TV, for example, अगर हम रसना की बात करें या माजा की बात करें, you see how these ads play with your mind. कि माजा पी लिया तो मजा ही आ गया, but in reality, when you drink माजा, you just are getting sugar. Right? वो एक मीठा टेस्ट होता है that is similar to mango, but it is not as delicious as it is depicted in the ad. Similar to the packaging as well. A lot of brands also use packaging to kind of fool their consumers. Recently there was a campaign with Bonvita. कि Bonvita में सिर्फ sugar है, it is not a healthy drink, and उस पे केस भी हुआ, legal terms भी हुए. So packaging is pretty much around how it can create an impact on someone's decision making. जब भी हम कोई चिप्स देखते हैं, right? अगर उसको स्पाइसी दिखाना है, रेड एंड वाइब्रेंट कलर्स विद चिलीज फ्लोटिंग अराउंड, चिप्स फ्लोटिंग अराउंड, and it feels like it खाते ही बहुत मजा आ जाए, right? But usually it is a normal chips with just a spicy flavor, nothing more to it. So packaging plays a major role, creating a behavioral decision making in consumers' mind. And recently I took a workshop, and in which I compared a Bhelpuri packaging with Lay's packaging, right? And most of the people wanted to try Lay's chips because it was looking more appealing. Then I showed them one image of the actual bhel in a katori, जिसमें जो bhel बनाते हैं इलेक्ट्रिक घर पे, वो रखा हुआ था और साइड में Lay's का पैकेट रखा हुआ. Then people said कि वो bhel खाना चाहेंगे. Now you see, it is still the bhel. But psychology में जो perception of the product है वो काफी change हो गया. कि ठीक है, ताजा bhel होगा, उसमें freshly chopped onion होगा, and tangy flavor होगा, इमली या टमाटो का चटनी होगा, खाके मजा आ जाए. That they don't get in the chips, right? So it is more around कि हम क्या psychological या behavioral चीजें कर रहे हैं, वो कैसे impact करता है. And usually you will see कि जो front package होते हैं उसमें product को इतना ज़्यादा objectify करके, मतलब कि उसमें क्या क्या ingredients पड़े हुए हैं, क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, उससे उसको ऐसे illusion create किया जाता है.
देन कंज्यूमर सी कि ठीक है मेरे को कुछ तीखा खाने का मन हो रहा है, ये चिप्स ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Although chips is not very healthy, it is not very fulfilling, but वो decision बनाने में उस packaging से काफी help. So I think packaging is pretty much around helping someone make their decision. So for example, if you are feeling very hot, like गर्मी में तुम बाहर गए बैंगलोर में घूम के, and when you reach home जहाँ पे 2 जूस रखे हुए हैं, ठीक है, one has orange or as a splashing splash of water and fresh colors, orange and maybe cyan colors. On the side there's a beverage, ठीक है, that is more around spicy beverage जिसमें red flavor है, and they're same beverage with different flavors. Which one will you choose first? Definitely जो attractive लगेगा, but The to orange be one or honest, the chili? ऑरेंज वन ही चूज करेगा इंसान. बट इफ यू हाँ, आस्क मी लाइक अभी because आई that विल is बी, pretty much. अब मैं कहना चाह रहा था कि राइट नाउ अभी हम लेबल काफ़ी पढ़ने लगे पिछले 1 साल से, जब से हम फिटनेस में इन्वॉल्व हुए और थोड़ा सीरियसली फिटनेस को लेने लगे. सो आई स्टार्टेड रीडिंग द लेबल्स. सो काफ़ी टाइम हमने ये चीज़ नोटिस की है कि ठीक है. सामने लिखा है नो शुगर और पीछे लिखा है 10% शुगर, तो वो नो एडेड शुगर रहता है और पीछे कुछ और रहता है. सो मेरा पहला डिसीजन रहेगा कि मैं चेक करूंगा इंग्रेडिएंट्स कौन सा अच्छा है, उसके बाद चूज़ करेंगे. दोनों में शुगर है कुछ नहीं चूज़ करेंगे. सो दैट्स माई परसेप्शन. गो अहेड. ठीक है, that is true. But यहाँ पे 2 different product होने चाहिए choose करने के, right? But now we are talking about कि एक beverage जिसके 2 flavors हैं, like one is orange and उसका नाम कुछ tropical हो सकता है, one is chili and उसमें spicy भी हो सकता है, fire, ठीक है. One is flavored as orange, same beverage, orange flavor and chili flavor. Still people will choose orange क्योंकि वो biased है कि orange है, fresh होगा, it will be calming and it will जो भी उनको गर्मी लगे उसमें help करेगा, right? क्योंकि हमारा जो mind है वो पहले से ही function है उस चीज के लिए, तो उस सिनेरियो में हम obviously orange choose करते हैं, chili को avoid करते हैं until unless we are going wild on that day. उस सिनेरियो में maybe we can go ahead with chili. Now coming to the point कि बहुत से ब्रांड फ्रंट पे जो भी ये USPs होती हैं, जो फीचर्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स उसको बैक नहीं करते या उस चीज से रेलेवेंट होते ही नहीं. जैसे कि बॉर्नवीटा का एग्जांपल, इट इज कॉल्ड अ हेल्थ ड्रिंक फॉर चिल्ड्रन, बट इट वाज मोर देन 30% इट वाज ओनली शुगर, राइट? So how is it helpful for a children? Or even 30% sugar is not even good for an adult, right? So for these brands, obviously they'll come around with time. Now people are aware, they are reading labels, and I think these brands will also improvise and come up with better products in future. Okay, interesting. ये जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, this is the exact thing that I was about to ask you in the next question. कि ये जो कंपनीज है, जो जैसे कि बॉर्नवीटा में हुआ, जैसे कि फूड फार्मर ने हम लोगों को एजुकेट किया और अवेयर किया इसके बारे में, तो जैसे कि जो कंपनीज हैं रिसीव कर रही हैं ऑडियंस को गिमिक्स यूज करके, मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करके, इसका क्या फ्यूचर है? क्या आपको लगता है कि एज अ डिजाइनर आप क्या कर सकते हो इस पे, और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज को लेकर? Okay. I believe as a designer you cannot change the product, okay? Because that is a totally different process जिसमें शायद आपकी expertise नहीं है, मेरी तो नहीं है किसी product को बनाने में. But what I usually suggest clients or founders when we are building a strategy, that try to be honest, okay? Dishonest होने से एक टाइम पे प्रोडक्ट बिकता था, it was a good strategy, आपने फ्रंट पे क्या लिखा है, बैक पे कोई रीड नहीं करता था, it was working back then. क्योंकि उस टाइम पे शायद हम इतना ज्यादा बाहर का खाना नहीं भी खाते थे, और उस टाइम पे अगर हमने एक अनहेल्दी प्रोडक्ट खा लिया तो it was not affecting us on a big scale. Now in today's day and age होता क्या है कि हमारा mostly food is sourced from outside vendors,
राइट? उस केस में ये क्लैरिटी होना कि हम क्या न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज अगर ब्रांड्स जो प्रॉमिस कर रहे हैं और वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, it is as good as lying to someone. And eventually consumer will be aware of this and they will not be dealing with your brand in any sort of engagement, whether it is about buying your product or talking about your brand or appreciating your brand. So you will lose a lot of stake on your brand and product itself. So it is very wise to be honest, right? Cadbury का अगर चॉकलेट है, they are not marketing it as a health chocolate. They are marketing it as a chocolate only. ये चॉकलेट है, चॉकलेट खाओ, हैप्पी मोमेंट्स हैं, it is fine. मेरे को चॉकलेट खाना है, अवेयर कि आई एम नॉट ईटिंग फॉर हेल्थ. लेकिन वहीं पे अगर कैडबरी बोले कि हमारा एक न्यूट्रिशन बार, प्रोटीन बार, चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन बार, बट प्रोटीन का वैल्यू है उसमें 4 ग्राम्स एंड शुगर का वैल्यू है उसमें 14 ग्राम्स, then it is not good. They have to be sure कि आप क्या प्रोडक्ट में डाल रहे हो और आप लोगों को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं. So your brand doesn't have to suffer in future. So that is my take, and I usually suggest founders that open about it, what you are doing, and if you feel like you cannot be open about it, then change the product, right? क्योंकि आपको बिजनेस 6 महीने या साल भर के लिए नहीं करना है. उस टाइम पे तो शायद आपका रिटर्न भी वापस नहीं आएगा. बिजनेस आपको अगले 5, 10 साल, 15, 50 साल के लिए करना है, राइट? तो look for sustainable options, not for gimmicky things. एथिकल होना जरूरी हो चुका है आज के टाइम में, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेके. जैसे कि अभी जैसे अभी हम फूड फार्मर की बात कर रहे हैं. हाँ, गो हेड अभी बताते हैं हम फिर. ओके, लाइक फूड फार्मर ने जैसे बॉर्नविटा का एग्जांपल दिया, ठीक है. देयर वाज अ टाइम जहां पे सारा खाना बच्चों के लिए घर का होता था, एंड दूध पीने के लिए इट इज बॉर्नविटा वाज एज गुड एज मिक्सिंग द शुगर, ठीक है. उस टाइम पे अगर आप 1 चम्मच शुगर डाल के बच्चे को चीनी पिला देते थे, इट वाज नॉट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑन अ बिग स्केल, राइट? ऑब्वियसली इट वाज अफेक्टिंग, बट क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे न्यूट्रिशन उनको मिल जाते थे, इट वाज नॉट दैट बैड और क्रूशियल. बट अभी क्या है, बच्चे सिर्फ बॉर्नविटा नहीं खा रहे, बॉर्नविटा के साथ दे आर ईटिंग चिप्स, कुरकुरे, कुकीज, कैंडीज, एंड मे बी जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनका जो वॉल्यूम है या वैल्यू है वो बहुत कम हो गया है. तो पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं उसकी क्लैरिटी उन्हें होनी चाहिए, एंड इट इज अप टू देम कि वो चॉकलेट या चॉकलेट पाउडर या चॉकलेट में देना चाहते हैं या नहीं देना. देन इट इज अप टू देम. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. जैसे कि बात चल रही है फूड फार्मर की, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली उनसे और उनके अवेयरनेस कैंपेन से. पता था इतना कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में जिस हिसाब से शुगर ऐड की जाती है, वो चीज़ हम लोगों ने, जैसे हम लोग का पूरा ग्रुप था कि फिटनेस में सब लोग इन्वॉल्व थे, तो शुगर से दूर ही भागते थे. मतलब कोई भी ड्रिंक है, शुगर देख लिया, रख दिया. तो वो चीज़ जब अवेयर किया उन्होंने तो बहुत अच्छा लगा. ह्यूज सपोर्ट टू फूड फार्मर. तो उनका अभी रिसेंटली कल एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ है, हेल्थ मूवमेंट, लेबल पढ़ेगा इंडिया. सो व्हाट डू यू थिंक एज अ डिजाइनर कैन वी डू फॉर दैट? लाइक कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या करना सही रहेगा फॉर आवर बिजनेस और नॉट? अंडरस्टूड, ठीक है. सो आई थिंक एज डिजाइनर वी कैन ओनली सजेस्ट, and we cannot do much कि प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, बट वी कैन ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा तो आपकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए. हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. ट्रांसपेरेंसी दैट ब्रिंग. हाँ, चलिए, काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट है ये. हाँ. one more thing that you can do is कि you can tell the founders कि if you feel like कि आपका प्रोडक्ट सॉलिड है and people will not question it, then maybe you can run a testing. ठीक है, आप 100-200 लोगों के साथ टेस्टिंग रन कर लो, then see कि लोगों का फीडबैक क्या है. अगर उनको शुगर फ्री प्रोडक्ट ही चाहिए तो आप शुगर वाला प्रोडक्ट बना के वैसे भी मार्केट में विन नहीं कर पाओगे. then not doing it is as good as कि आप मत ही करो, राइट? So testing can be one thing कि हम सजेस्ट कर सकते हैं
so they can understand कि ठीक है, if consumer requirements are sugar free, then why not go with the sugar free products? इंटरेस्टिंग। ये जहाँ तक हमें लगता है डिजाइनर कि वी शुड एजुकेट द फाउंडर और द कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को एथिकल रखो, जो है वो बताओ। और एक और क्वेश्चन कह लीजिए, क्यूरियोसिटी है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 100% नेचुरल, 100% फ्रॉम द फार्म एंड ऑल। तो ऐसा नहीं लगता है कि एज द लाइक मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन उनके सिमिलर हैं, तो एक टाइम पे आगे चल के ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ें एम्बिगुअस हो जाएंगी और सिमिलर हो जाएंगी, तो उनके पास डिफरेंशिएट करने का कुछ फैक्टर ही नहीं बचेगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि बहुत सारे, जब सारी ब्रांड अगर नेचुरल हो जाए, 100% क्या कहते हैं 100% ऑर्गेनिक हो जाए, तो एक दूसरे से कुछ यूएसपी उनका डिफरेंट ही नहीं रहा, तो क्या होगा? ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बाकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंट करना है, राइट, तो यूजुअली क्या होता है कि जो फाउंडर्स होते हैं, यू विल सी कि वो प्रोडक्ट बनाने से पहले कंज्यूमर्स के बारे में ज्यादा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट पे फोकस करोगे कि ठीक है, चॉकलेट ब्रांड्स बहुत सारे, मुझे भी एक चॉकलेट ब्रांड बनाना, कैसे अलग बनाऊं, ठीक है, मे बी इसका आंसर बहुत टफ हो जाएगा। बट आप अगर चॉकलेट खाने वाले कंज्यूमर्स के बारे में समझो कि ठीक है, उनको अगर एक सिर्फ चॉकलेट चाहिए जो कि 10 रुपए में अच्छी चॉकलेट चाहिए, कैडबरी, उन्हें अगर एक चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन बार चाहिए तो वहां पे मे बी मैक्स प्रोटीन या काफी डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल, राइट। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 30 रुपए में गैप मिल रहा है कि जहाँ पे चॉकलेट जो कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, ठीक है। नाउ यू हैव इनसाइड, व्हेन यू बिल्ड अ प्रोडक्ट ऑन द इनसाइड, it is always different. When you build a product based on कि ठीक है, चॉकलेट का बिजनेस चल रहा है इसलिए चॉकलेट बना लेता हूँ, सप्लीमेंट्स का बिजनेस चल रहा है इसलिए सप्लीमेंट बना लेता हूँ, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। फिर डिफरेंशिएशन आ जाता है दूसरी चीज, दैट इज अराउंड द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हनी ट्विक्स का। तो हनी ट्विक्स रिसेंटली शार्क टैंक पे आए, ठीक है। उनका प्रोडक्ट है हनी। हनी इज ऑर्गेनिक, हनी इज नेचुरल, हनी हैज एवरी प्रॉपर्टीज फॉर द हेल्थ एंड एवरी ब्रांड इज क्लेमिंग द सेम, ठीक है। मे बी उनका पर्पस अलग हो सकता है, कुछ ब्रांड डिफरेंशिएट करते हैं कि दे आर सोर्सिंग इट फ्रॉम द फार्मर्स एंड गिविंग इट बैक टू द फार्मर्स। तो काफी बार हम लोग कनेक्ट करते हैं कि ठीक है, जो भी मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उससे एक इम्पैक्ट भी आ रहा है, दैट इज द डिफरेंशिएशन इटसेल्फ। नाउ हनी ट्विक्स ने क्या किया कि छोटे छोटे सैसे बनाए जो आप एक बार में कंज्यूम कर सकते हो हनी के, राइट, ओके। अब आप ये सैसे अपने ऑफिस में लेके जा सकते हो, डे टू डे लाइफ में आप ये कैरी कर सकते हो। तो उनका जो यूएसपी हो गया वो हो गया कन्वीनियंस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज द सेकंड और द थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसे ही आप काफी सारे ब्रांड्स देख सकते हो, जैसे कि एक बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड ब्रांड है रेड बुल, ठीक है। रेड बुल नेवर टॉक्स अबाउट उनके प्रोडक्ट में क्या अलग है या फिर उन्होंने कितना उसको नेचुरल या इंग्रेडिएंट्स क्या डाले। उनका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज अराउंड कि वो किस कल्चर पे अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं, राइट। अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हो then you are part of this culture जहाँ पे रिस्क है, वाइल्डनेस है, जहाँ पे आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग्स हैं, you are a doer, you are a risk-taker, you are a part of that kind of community and culture, right? So that is totally differentiated product and it has nothing to do with energy at all, right? Red Bull में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं जो आपको एनर्जी दे। You can drink, I would say, a coconut water. It might be better than that. Obviously, product के features में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि I'm not pretty much sure about the ingredients of the Red Bull, but differentiation उनका product पे भी नहीं है, brand पे भी नहीं है. It is about the community and the culture.
So tons of things that you can differentiate on. You have to Yes. understand consumers, you have to understand your product, market, then see कि आपके सिनेरियो में वो क्या चीज है जहाँ पे आप अलग हो सकते इंटरेस्टिंग। सो बात रेडबुल की चल रही है तो व्हाट आई फील इज कि रेडबुल और उसका एक कंपटीटर है मॉन्स्टर एनर्जी जो हम खुद प्रेफर करते हैं। तो इफ यू कैन सी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है रेडबुल इज मोर अबाउट टुवर्ड्स द एडवेंचरस कैटेगरी के पीपल, और मॉन्स्टर एनर्जी फोकस किया है मोस्टली गेमर्स को टाइप के। और दोनों की चीज़ें सेम ही है, दोनों में कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एनर्जी फील होती है, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो इम्प्रूव करते हैं। बट हाँ, जैसा कि आपने बोला, दे हैव डिफरेंशिएटेड देमसेल्फ इन अ वेरी गुड वे, यू कैन से। दोनों एनर्जी ड्रिंक हैं, दोनों ने अपने आप को अच्छे से डिफरेंशिएट किया है बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस। सो या, रियली इंटरेस्टिंग थिंग। exactly and there's another energy drink although it is not an energy drink it is as good as soda that is Sting right Sting now you see कि Sting ने अभी खुद को काफी डिफरेंशिएट किया है, उसकी पोजीशनिंग अलग है, उन्होंने प्राइस पॉइंट से डिफरेंशिएट किया, दैट इज वन थिंग। अब उन्होंने दो जगह डिफरेंशिएशन किया, एक एनर्जी ड्रिंक से, दूसरा रेगुलर जो भी हमारा कैन जूसेस होते हैं या जो भी सोडा होते हैं, ठीक है, बेवरेजेस होते हैं, दोनों कैटेगरी में दे हैव नॉट डिफरेंशिएटेड मच ऑन द प्रोडक्ट बट द एंड यूज केस ऑफ द प्रोडक्ट या फिर व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी दे आर सर्विंग, और वो लोग किस वजह से उसको खरीद रहे हैं, राइट, द कॉज बिहाइंड बाइंग इट। दे विल सी के Sting पिया, Sting means energy, but I don't think it has much to do with energy, right? You can drink a cup of black coffee and you can get the same energy. I agree with that. So Sting में mostly sugar होता है। There are tons of ways to differentiate. Yeah, it is very unhealthy. So yeah, interesting है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस अब ये थोड़ा सेक्शन डिफरेंट होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइनर्स की। अगर कोई डिज़ाइनर इस वीडियो, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो व्हाट ही और शी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस एंड उनके प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक एज अ डिज़ाइनर और अ डिज़ाइनर शुड कंसिडर बिफोर डिज़ाइनिंग अ पैकेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, एफएमसीजी या फिर नॉन एफएमसीजी कोई भी हो, उसको डिज़ाइन करने के लिए उसे कौन सी बेसिक चीज़ें उनके बारे में ध्यान देना चाहिए? अंडरस्टूड। तो डिजाइनर्स को सिर्फ पैकेजिंग पे ना फोकस करके पहले समझना चाहिए कि वो पैकेजिंग किनके लिए है और कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। अगर वो एक जनरल ट्रेड में जाने वाला है, रूरल इंडिया के जनरल ट्रेड दुकानों पे, किराना की दुकान वहां पे जाने वाला है, ठीक है, वो काफी अलग होगा, ठीक है। सेकंड, अगर वही सेम चीज एक मॉल में, एक स्टोर में प्लेस होने वाला है, वो प्रोडक्ट काफी अलग होगा। देन उनको ये भी समझना चाहिए कि और बाकी कितने ब्रांड्स हैं, एंड वन एस्पेक्ट दैट दे शुड turn their process around कि how they can help a brand differentiate in the market, क्योंकि in FMCG or in any sort of consumer product, more than 30% products are ignored 100%, कि उनपे कोई कभी देखता ही नहीं है, right? They will never know the brand name, they will never know the product name. This is a research. Okay. That 30%, more than 30% products are ignored. 30% of the industry, right? Their first job is to make sure that 30% of the products on the shelf. अच्छा, on the shelf, हाँ, वही इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स होगा, are ignored. हाँ, ठीक, हाँ, are ignored. तो उनका पहला जॉब होगा कि उस रिस्क से अपने क्लाइंट के ब्रांड को बचाना है कि वो इग्नोर ना हो. So it has to be, appealing. It has to be unique. That is there. That is the obvious thing. Design has to be good. It has to follow the rules of design. Colors कैसे होने चाहिए. But on a deeper level, वो product कैसे differentiate कर सकता है. Then second thing, how can they make the information interesting, right? So rather than putting what the client or founder is suggesting them,
कि ठीक है हमारे प्रोडक्ट के फ्रंट पे ये लिख दो। डू एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स कि उनके लिए क्या चीजें काम कर रही हैं, उनके लिए क्या चीजें काम नहीं कर रही हैं। इसका एक सिंपल तरीका हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटर ब्रांड के सोशल मीडिया पे चले जाओ या अमेजोन पे चले जाओ, उनके रिव्यूज पढ़ लो, ठीक है, एंड सी लोग सबसे ज्यादा क्या अप्रिशिएट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। एंड अगर आपके क्लाइंट के ब्रांड का वो यूएसपी से अलाइन होता है, then make sure that is the most highlighted part of the packaging, right? So this is one type of research. There are tons of things that you can do, right? अगर किसी बेवरेज ब्रांड में लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्लेवर है, ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि मेरे को इसका ये फ्लेवर पसंद है, मेरे को इसका ये फ्लेवर पसंद है, then make sure आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी प्रोडक्ट से, and वो differentiate कर रहा on the basis of flavors. Okay. Right? Then the chances of this product, you know, differentiating on self and जो भी आपका consumer वो इस product को pick करेगा, they are higher than average. Right? That will make the successful package design. Yes. तो अपने competitors को समझना, उनके प्रोडक्ट को समझना, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना, कंज्यूमर को समझना, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझना is very important before you create even a mood board for the design. Okay. Once you have this foundational data, foundational understanding of a brand, फिर आप अगर क्लाइंट को भी बोलोगे ना कि हमें ये करना चाहिए, they will accept your suggestions because now it will make sense rather than कि ठीक है हम playful design बना सकते हैं, हम मिनिमल डिजाइन बना सकते हैं, वो तो कम्युनिकेशन का एक तरीका हो गया। बट कम्युनिकेट क्या करना है, कम्युनिकेट किन्हें करना है और कैसे करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये चीज है इसमें। नाउ दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट इसमें ऐड करना था कि देयर इज अ कांसेप्ट व्हाई, हाउ और व्हाट, ये वाला चीज की कैसे करना है वो तो हमें डिसाइड कर लेंगे कि जैसे आपने बताया कि प्लेफुल रखना है, मिनिमल रखना है, लेकिन उससे पहले उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो go ahead. Totally. And agree with you. And this is not just applicable on design or the FMCG. It is applicable on each and everything. For example, तुम ये चीज इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी देखोगे। तो अगर सारी रील्स एक जैसी मिलेंगी, हम रुकते नहीं है किसी भी रील पे, बट एक रील में बंदे ने अजीब बाल कर रखे हैं, मे बी हम उनको क्रिटिसाइज करें, बट हम वहां पे रुकेंगे, कंटेंट देखेंगे, अगर वो रेलेवेंट है तो हम अप्रिशिएट करेंगे, रेलेवेंट नहीं है तो क्रिटिसाइज करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट उन्हें इग्नोर करना इज pretty much impossible. You can call them weird, you can call them genius or anything, but they have cracked it. They have understood कि उन्हें differentiate करना जरूरी है. And this is very similar to जब fashion का ramp walk होता है, ठीक है, you will always see different designers हैं, उनके different dresses हैं, but you will always see कि किसका सबसे ज़्यादा different है, कैसे वो डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी ड्रेसेस में। अगर सारे ड्रेसेस व्हाइट में और एक ड्रेस ब्लैक में, यू विल ऑलवेज रिमेंबर द ब्लैक ड्रेस, किसने पहना था, डिजाइन क्या था, सब कुछ तुम्हें याद रहे। व्हाइट वाले में मे बी तुम बेस्ट 3 याद रख सको या बेस्ट 4 याद रख सको, बट कुछ भूल जाओगे। बट द चांसेस ऑफ यू रिमेंबरिंग द ब्लैक वन आर लाइक वेरी हाई। So this concept can be applicable in your life, in each and everything that you do, not just on the product and packaging. चलिए, काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट था। आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ यंग डिजाइनर्स who want to do this packaging design. और मूविंग अहेड की जो एस्थेटिक पैकेज डिज़ाइंस आप देखते हो इंडस्ट्री की, खास करके जो अवार्ड विनिंग वेबसाइट्स होती हैं उन पे जो डिज़ाइंस आप देखते हैं काफ़ी एस्थेटिक लगती हैं, और वैसी डिज़ाइंस आप शेल्फ्स पे नहीं देखोगे, खास करके इंडिया में, बीट एफएमसीजी और बीट नॉन एफएमसीजी, टेक प्रोडक्ट्स हो या फिर एफएमसीजी का हो, दोनों कैटेगरी में। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो चीज़ें केवल बाहर ही चल रही हैं, यहाँ पे नहीं चल रही हैं, या फिर शेल्फ में नहीं दिख रही हैं,
केवल अवार्ड्स विन कर रही हैं, एंड दोज आर रियल प्रोडक्ट्स, रियल क्लाइंट्स, नॉट फेक। और उसे एग्जांपल में अगर आपको देते हैं, जैसे पेंटा अवार्ड्स पे जो आप देखते हो डिज़ाइन, या फिर डाईलाइन अवार्ड्स आ गया, तो इन जो अवार्ड वेबसाइट्स पे जो भी आप डिज़ाइंस पैकेजिंग के देखते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? और या क्या Got रीज़न हो it. सकता है? Okay, so first of all, we have to agree that Western countries Hmm. have been ahead of us in how they, put the product to the consumer's side, Hmm. whether be it design or marketing. But now you'll see many brands in India have already started being great with design. Hmm. Now we'll talk specifically about design, right? Not the consumer's end. Hmm. But होता क्या है कि जैसे हम पेंटाग्राम की बात करें या इन वेबसाइट्स की बात करें, तो वहां पे हमें कितने डिजाइन दिखते होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10,000 20,000 डिजाइन। ये भी नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट रियल लाइफ में कितने प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं? इट विल बी इन मिलियंस। तो नंबर ऑफ गुड डिजाइन्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का जो रेशियो है वो काफी अलग है। इसलिए काफी बार अच्छे डिजाइन अवेलेबल भी होते हैं, बट क्योंकि एवरेज या फिर ऑनगोइंग ट्रेडिशनल डिजाइन्स या प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वी फील लाइक कि देयर इज अ गैप इन डिजाइन, कि अभी भी बाकी काफी सारे प्रोडक्ट्स बेच होना बाकी है। नाउ कमिंग कि क्या ये चीज इंडिया के साथ ही है या बाहर के साथ, बाहर कंट्रीज में भी है। तो आई हैव वर्कड विद अ फ्यू क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया, ऑल्दो आई प्रेफर टू वर्क विद इंडियन क्लाइंट्स ओनली, क्योंकि वो ब्रांड से मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, उनसे मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट प्लेसेस। But I have worked with a few brands who are based in Dubai and a few brands who are based in Miami and New York, and I feel like the problem is same with them as well. Maybe वहाँ पे जो अच्छे डिजाइन प्रोडक्ट्स का जो नंबर है वो ज्यादा है compared to India, but they also have poor designs and traditional designs and complicated designs, and that is why I have made it like a mission for me and my team कि हम जिन भी क्लाइंट्स या ब्रांड्स के साथ काम करेंगे, we make sure that they are not suffering this problem and the problem of being ignored. So that is the obvious thing that we are making sure. Other than that, you will see कि अभी भी इंडियन मार्केट्स में जो लीडिंग ब्रांड्स हैं काफी कैटेगरीज में, वो बाहर के ब्रांड हैं, एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में ज्यादा है। इसलिए उनके डिजाइन को देख के हमें कभी पता ही नहीं चला कि वो बाहर के ब्रांड हैं, राइट? जिससे मुझे बहुत टाइम तक नहीं पता था कि बाटा इंडिया का ब्रांड नहीं है। ओके, मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला। इट माइट बी सरप्राइजिंग फॉर इट माइट बी सरप्राइजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट बाटा इज नॉट एन इंडियन ब्रांड, बट हाउ दे डिजाइन्ड इट, हाउ दे हैव कम्युनिकेटेड इट ओवर द इयर्स, इट फील्स लाइक यार ये तो इंडिया का ही ब्रांड, राइट? मैगी एक ब्रांड है, मैगी जैसा ब्रांड, इट फील्स लाइक नहीं यार, मैगी तो हम ही खाते हैं, इंडियंस आर आवर मैगी हमारा फेवरेट फूड है। बट उनका डिजाइन जो भी देखो वो कंज्यूमर ग्राउंड इतना ज्यादा है, एंड इट इज वेरी अपीलिंग, डिफरेंशिएट भी करता है, नया भी है, अपीलिंग भी है, एंड रेलेवेंट भी है। सो दीज ब्रांड हैव अंडरस्टूड India better than a lot of Indian brands, and they are winning it. Yeah. So अगर डिजाइनर्स के लिए कहीं अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है FMCG स्पेस में, so it is mostly around कि वो इंडियन ब्रांड्स को हेल्प करें ऐसी ब्रांड्स को डिफीट करने में या फिर उनका मार्केट शेयर लेने में। So that has the highest chances, and उस सिनेरियो में you will be paid enough amount that you are willing to charge. Okay, so काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिली। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कह लीजिए, या फिर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, कौन सी ब्रांड का पैकेजिंग डिज़ाइन देख के आपको ऐसा लगता है कि ये मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो? बट बेसिकली इंडिया में कोई एक या दो ब्रांड, किसी भी इंडस्ट्री में, FMCG में आप स्पेसिफिकली बता सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
What do you think? ठीक है. So the whole truth, Hmm. they have totally disrupted Hmm. के पैकेजिंग पे क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए. जो लेवल के पीछे की इंफॉर्मेशन है वो फ्रंट पे लिखना है, Hmm. राइट? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, एथिकल होना, न्यूट्रिशन वैल्यूज और क्या कंज्यूमर के लिए सही है, वो उस ब्रांड के लिए ज्यादा बड़ा फोकस है. तो उन्होंने क्या किया, पैकेजिंग के सारे रूल्स हटा दिए, फ्रंट पे उन्होंने डिटेल्स डाल दी कि इसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या इंग्रेडिएंट्स, राइट, अलोंग विद सम ऑब्वियस थिंग्स लाइक प्रोडक्ट इमेज, वो भी है, बट दे हैव कंप्लीटली चेंज्ड, दे हैव टोटली डिसरप्टेड इट. एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, देयर आर टन्स ऑफ ब्रांड्स दैट वी कैन सी कि उन्होंने कैसे इस चीज को डिसरप्ट किया. कुछ 5 So फेवरेट I think ब्रांड्स का then we बताइएगा can अपने. take it down. 5 फेवरेट ब्रांड्स. 5 फेवरेट ब्रांड्स इंडिया में जिनकी पैकेजिंग आपको बहुत अच्छी लगती है. Okay, got it. So I think I can recall 2 to 3, Hmm. or I'll be very confused with, because there are a lot of brands that I really like. First of all, the Whole Truth. ठीक है. Second is Two Brothers Two Brothers. Okay. Organic Farms. Then there's a brand called Dehat. Yeah. Okay. Now ये पैकेजिंग सिर्फ डिजाइन की वजह से मैं नहीं रिकॉल कर रहा हूँ, बट वो कितना ब्रांड के लिए सक्सेसफुल रही है. देन अगर मैं डिजाइन पे बात करूं, सो हनी बिट्स, Okay. that I have designed. Okay. I really like it because That is good. That is totally absolutely disrupted good. how the packaging designs are That is good. used. Yeah. And so that will be all for now. But I think there are tons of Indian brands who are doing amazing job on their packaging. चलिए एक आखिरी क्वेश्चन फॉर द डिजाइनर्स हु वांट टू गेट इनटू पैकेजिंग डिजाइन, या फिर उनको अगर इम्प्रूव करना है, तो अगर किसी के पास रियल क्लाइंट्स नहीं है, तो व्हाट शुड ही और शी डू एज अ डिजाइनर टू इम्प्रूव हिज और हर पैकेजिंग स्किल्स? ठीक है. तो सी देयर आर 2 थिंग्स. पहली चीज, आपको डिजाइनर बनना है, तो उस केस में यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग पैकेजिंग. ओके. और सेकंड चीज, मैं उस पे भी आऊंगा. सेकंड चीज, अगर आपको डिजाइन बिजनेस ओनर बनना है, इट कैन बी अ फ्रीलांसर, इट कैन बी हैविंग अ टीम, तो दोनों में मेथड्स काफी अलग हो जाते हैं, और वो दोनों ही सेम अप्रोच ले सकते हैं. जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ बेटर डिजाइन सीखना, वहां पे आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के डिजाइन ले सकते हो, या फिर आप डमी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जहां पे आपने कॉन्सेप्ट ब्रांड को चुना, आपने खुद ही सोचा कि ब्रांड अगर ऐसा होगा, आपने ग्रिड बनाया, आप चैट जीपीटी से ग्रिड जनरेट कर सकते हो. देन यू क्रिएट अ ब्रांड अराउंड इट, लोगो बनाया, पैकेजिंग बनाया, मॉकअप्स डाले, मे बी सेल्फ पे उनको पोजीशन दिया. नाउ ऑन द सेकंड हैंड, जहां पे यू वांट टू रन अ डिजाइन बिजनेस, मे बी विद योरसेल्फ ओनली या फिर एक टीम के साथ, that too in packaging design, the best way to do it is create content around it. Okay. And design करो, but design के principles या फिर डिजाइन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं पैकेजिंग के बारे में बात करो, talk about it. Because I see a lot of designers, including me, were not talking about कि उसका end goal क्या है. हम सिर्फ डिजाइन की बात कर रहे हैं कि डिजाइन में हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कैसे बना सकते हैं, rather than talking about कि डिजाइन क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है. तो अगर हम उसके अराउंड कंटेंट बनाएं, because content is the best thing you can do for your business, right? Create content, show your journey, show your experiments, and if you are doing a good job, then eventually you will have clients, business, real projects. And I think that is the best thing that you can have working on the real projects. There can be different things that you can get in an internship, you can start a job, but usually designers are not preferring it.
that is why I have not included it. Obviously, that is an option. You can always do a job, but उसमें बहुत सारी conditions होती हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है. You have to figure out a lot of things. So best way, two things: create dummy projects or create a redesign of existing brands. Create content around it. Tell people why you have come up with certain designs. What was the logic? अगर आपका डिजाइन दूसरों को सिखाएगा नहीं तो मे बी यू कैन लर्न फ्रॉम द फीडबैक ऑफ अदर्स कि ठीक है भाई तुमने तो बोल दिया कि मैं ग्रीन से इको फ्रेंडली डिपिक्ट करना चाहता हूँ बट तुमने नियॉन ग्रीन यूज किया हुआ है तो ये यूजफुल नहीं है उस चीज को डिपिक्ट करने राइट सो यू गेट फीडबैक यू लर्न इन द प्रोसेस सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू या So I hope इसे सीखने को मिला होगा and this is another sign for you all to create content, not to educate but to build in public and learn in public. So I hope this helps. So I think we have covered a lot of things और 1 घंटा हो चुका है. I don't think मुझे और टाइम देना चाहिए. This will be too long for the audience and all. But we hope आगे चल के एक बार फिर पॉडकास्ट करेंगे किसी और डिफरेंट टॉपिक पे और फिजिकल भी करेंगे. This was the first episode of this podcast and I really want to thank Tushar for coming and helping me out. पिछले 1 महीने से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था बट अब जाके स्टार्ट हुआ. So thank you Tushar, thank you so much. Yeah, thank you Vaibhav. It was pleasure to talk about design, packaging, consumer everything. क्योंकि again this is content that we are creating. We will get feedback from someone who has better knowledge than ourselves. Maybe it can be a founder of 100 business, right? Because they have better understanding of it. So there's always chance to learn and grow, and that is why keep creating, keep learning, keep hustling. Yeah. See you in the next podcast. Thank you all. Okay, man. That was Tushar. Thank you, man. And that's it. This is a wrap of the first episode. This is your host Vaibhav Yadav, aka Virus Visuals. I'm a graphic designer and a brand designer. And see you in the next one.